Welcome to this episode of The Journey with me, Shaina NC. Every week we have one member of parliament and hear his or her story, journey, and how they got into public life. Today we have one of the most interesting stories of Gajendra Shekhawat ji, who began his political career in student politics back in 1992. He was elected the president of the Union of many student movements and then went on to be a part of the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, and as we know is currently a minister from Rajasthan, has been elected to the member of parliament of the 16th Lok Sabha in 2014 with the highest ever winning margin of 4,10,000 votes. You heard it right, 4,10,000 votes from the constituency of Jodhpur. And one of his major achievements during his term as an MP has been the expansion of the Jodhpur airport, a demand that he continuously raised during the last 18 years. He is known for his use of social media, positively of course, and the fact that he is a politician of repute is known to one and all. His mission, his water mission, is something that we will clearly discuss this journey, and let's hear from him how he got into politics and how he has contributed to this great Indian democracy of ours. Welcome to the show. नमस्कार. नमस्कार शेखावत जी, आप waterman कहें या should we say water mission is what you're driven by, or should we first know about how the journey began? When I was a student जी. and studying in Jodhpur Vishwavidyalaya, I used to play basketball. I used to take part in the debate competition जी. and representing my university. थोड़ा popular student था. जी. Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad was looking for a candidate who can contest election for them. And you were the suitable candidate. Election लड़ा, election जीत करके जोधपुर विश्वविद्यालय का became the president of the student union. As president of the student union, we worked for overall development of the students. We fought for the right of the students. University में उस समय there used to be some system of moderation. जी. So moderation में कभी पुराने time में sometime it might have happened that paper जो है out of the syllabi आ जाते थे. So university developed a system that whatsoever paper which is being set, because the UGC's norms are Right. that undergraduate state level पे 50% papers are to be set by the external paper setters who are not the part of the university. So just to keep the check on those papers, the papers which were set by the external paper setters, डिपार्टमेंट में एक सीनियर प्रोफेसर की कमेटी जो होती थी वो उसको वापस री एग्जामिन करते थे. सो प्रैक्टिकली देयर यूज्ड टू बी नो पेपर फ्रॉम द आउटसाइड, एवरीबडी यूज्ड टू नो ऑल द पेपर्स एंड देयर यूज्ड टू बी ए ट्यूशन माफिया दैट टाइम. वो अपने पेपर्स को लीक कर देता था. सो जेन्युइन स्टूडेंट्स को जो उसके कारण से प्रॉब्लम होती थी, हमने उसके अगेंस्ट में एक आंदोलन किया. वी वर सेंट टू जेल. बहुत दिन तक वो आंदोलन चला एंड फाइनली हम उससे सक्सेसफुली हम उसको चेंज कराने में कामयाब हो गए. उसके चलते बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी मिली, क्रेडिबिलिटी बनी. बट स्टूडेंट लीडरशिप के और डे टू डे पॉलिटिक्स के आने के बीच में लगभग 20 साल का कालखंड था. 1993 व्हेन आई कंप्लीटेड माय स्टूडेंट यूनियन कैरियर, और 2014 में जब मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आया. इसके बीच में मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं था. Then what were you doing? मैं जब 1993 में जब मेरा स्टूडेंट लीडरशिप का टेन्योर कंप्लीट हुआ, एंड लाइक ऑल अदर स्टूडेंट लीडर्स आई वाज आल्सो विलिंग टू गो इनटू डे टू डे पॉलिटिक्स. बट एट दैट टाइम जो मेरे मेंटर्स थे, ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग थे, बिकॉज आई वाज वर्किंग विद विद्यार्थी परिषद, सो दे डिसाइडेड दैट हमने तुम्हारे लिए कोई दूसरा काम तय कर रखा है. आई वॉज ऑफर्ड द पोजिशन इन द भारतीय जनता युवा मोर्चा, बट
उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, पहले तुमको कुछ दूसरा काम करना चाहिए, और दैट वर्क वाज जो इंडो पाक बॉर्डर है. Since Rajasthan share almost 1/3 of the total length of the border what the Border. country share with the Yes. with Pakistan, and हमारा जो बॉर्डर है वो बाकी दूसरे स्टेट्स लाइक कश्मीर से या हम पंजाब। पंजाब से या गुजरात से कंपेयर करें, हमारा बॉर्डर की जियोग्राफिकल कंडीशन सिचुएशन डिफरेंट है. सिंस इट वाज अननेचुरल डिवाइड, राइट. स्टेट प्रिंसली स्टेट डिवाइड हुए और Yes. एक गांव इधर रह गया, वो उस और प्रिंसली एक स्टेट का वहाँ था, गया। एक इधर हो गया. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन उस एरिया में बहुत कम थी, और इतना कम होने के कारण से जो है बॉर्डर पर किसी तरह का हैबिटेशन भी नहीं था. दूर दूर छितराए हुए गांव होते थे. बॉर्डर के बीच में जो पोस्ट हैं वो आज जो हम देखते हैं उस तरह का कोई सिस्टम भी नहीं था. राइट. और धीरे धीरे ये पूरा एरिया जो है एंटी नेशनल एक्टिविटीज का सेंटर बनने लगा. पंजाब मिलिटेंसी के लिए हथियार आ रहे थे, नशीली दवाओं की तस्करी वहां से होने लगी थी. इन सब को रोकने के लिए, बॉर्डर को सिक्योर बनाने के लिए हमारे मेंटर्स ने हमको काम दिया था. और उस समय में एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया गया जिसको नाम दिया गया सीमा जन कल्याण समिति. हमने जस्ट टू पेनिट्रेट इन द बॉर्डर, हमने बॉर्डर विलेजेस, लोगों के बीच में क्रेडिबिलिटी बने, उसके लिए हमने वी स्टार्टेड स्कूल्स and established almost 140 schools across the border in Rajasthan. जो राजस्थान के 4 जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एंड गंगानगर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स. All the 4. 5 hostels we have established, started in all the districts and in Jaisalmer and in Jodhpur also. जहां हम बच्चों को रख करके, ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स उनको नहीं पढ़ा पाते हैं बट दे हैव स्पार्क, उनको ला करके हम अपने पास रख करके पढ़ाते थे. बॉर्डर एरिया के बच्चे यूनिफॉर्म फोर्सेस में जाएं, उनके ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करते थे. बॉर्डर एरिया के बच्चे जो हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए वहाँ हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर चलाते थे लगभग 300-400 जगह. वहाँ की महिलाओं की लाइवलीहुड के लिए जो कच्ची कारी कशीदा करती हैं, उनको सबको ऑर्गेनाइज करके और उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उनके जो है बेटरमेंट के लिए काम करते थे. This is the best training वहाँ you could have got. पशुपालन जो है आजीविका का मुख्य आधार है, क्योंकि बरसात होती नहीं है, जो है अकाल लगातार हर 2-3 साल तक लगातार अकाल पड़ते हैं. तो भयानक अकाल के समय में 1-1 लाख गायों तक के हमने कैंप जो है लोगों की गायों को रखने के लिए भी चलाते थे. इन सारी एक्टिविटीज़ के चलते जो लोगों से जुड़ाव बना, सोसाइटी में जो क्रेडिबिलिटी बनी, द आइडेंटिटी विच वी कुड मेक आउट, उसके चलते हमने एक सेकंड लाइन ऑफ सिविल डिफेंस जो है वहाँ खड़ा किया, लोगों में जागरूकता पैदा की. बॉर्डर सिटीजन होने के नाते आपके क्या राइट्स हैं उन और क्या ड्यूटीज़ हैं देश के लिए, बॉर्डर के लिए, उसके बारे में लोगों को खड़ा किया. और जब राजस्थान में सक्सेसफुल हुआ, देन वी रेप्लिकेटेड दिस इन गुजरात आल्सो, पंजाब आल्सो, जम्मू एंड कश्मीर एंड पूरे नॉर्थ ईस्ट पे. सो पूरे इंडिया के लैंड बॉर्डर पर काम करने का मुझे 20 साल तक मौका मिला. एंड देयर आफ्टर इन 2014 काम करते हुए जिस तरह की प्रतिष्ठा बनी थी वो, और समाज में जिस तरह की क्रेडिबिलिटी उस 20-22 साल के कालखंड में अर्जित की थी, 2014 के चुनाव में उसने नरेंद्र मोदी जी की जो वेव थी उसके साथ साथ में उस व्यक्तिगत जो अनुभव था, व्यक्तिगत जो संपर्क था, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. It's absolutely correct, Shekhawat ji, ki we are highlighting these journeys of parliamentarians because the international diaspora also wants to know who are our members of parliament, what have they done, what have they achieved. And when we hear of aspirational, inspirational stories such as this, that of the Prime Minister, it also shows you that in public you can have a wave of Prime Minister Modi, but the candidate should have also done something to achieve the merit of the voter. Do you feel that in 2014 to 2019 you were able to raise some really serious issues for Jodhpur, and how did you deliver? We know about the airport, but is there anything else you'd like to highlight? देखिए, जोधपुर जहाँ एयरपोर्ट से आपने शुरू किया, बहुत राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, हैंडीक्राफ्ट कैपिटल है स्टेट के, और देश में भी फर्नीचर एक्सपोर्ट्स में अपनी सबसे बड़ा स्थान रखता है, प्रोमिनेंट प्लेस रखता है.
उसके अलावा राजस्थान में स्पेशली जोधपुर में, जोधपुर प्रोविंस में एग्रो बेस इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज जो ग्वारगम एक्सपोर्ट करती हैं वो है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है। लेकिन जोधपुर एयरपोर्ट का एक्सपेंशन नहीं होने के चलते बहुत बड़ी चुनौती जोधपुर में थी। पिछले लगभग 25 साल से उसको लेकर के अलग अलग तरह के डिफरेंट स्केल पर डिफरेंट लोगों ने प्रयास किए थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जोधपुर के एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का रास्ता तय हुआ। इसके साथ में जोधपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। जोधपुर से बाड़मेर की तरफ, क्योंकि जो है क्रूड हमें मिल गया था, वहाँ पे क्रूड एक्सप्लोरेशन शुरू हो गया था, रिफाइनरी सेटअप हो रही है। रोड्स का नेटवर्क जो है वो अपग्रेड होना चाहिए। सो जोधपुर बाड़मेर तक नेशनल हाईवे पूरा रीबिल्ट हुआ, जोधपुर नागौर रीबिल्ट हुआ, जोधपुर पाली रीबिल्ट हुआ, जोधपुर जयपुर को कनेक्टिविटी के साथ सो कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारा काम हमने किया। और इसके अतिरिक्त जो है इस पूरे क्षेत्र में किस तरह से लोगों का रोजगार बढ़ सकता है, वहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को और कैसे बढ़ा सकते हैं, इन सारे विषयों पर भी हमने काम किया। लोगों के साथ में कनेक्ट बना रहे, लोगों के साथ में जुड़ाव बना रहे, लोगों की समस्याओं के साथ में जुड़ करके हम काम करें, इन सब विषयों पे काम किया। उसी का परिणाम ये हुआ कि 2019 में एक बार फिर उस चुनौतीपूर्ण चुनाव में जब राजस्थान की सरकार के मुख्यमंत्री के बेटे के सामने चुनाव लड़ना, एंड दैट टू जब सरकार 4 महीने पहले राजस्थान में बनी थी। इन सारी जो काम किया था, जो अपने संपर्क संबंध थे, जिस तरह से हमने धरातल पर रह करके सब कुछ किया था, उसी का परिणाम था कि 2019 के चुनाव में भी उतने ही बड़े मार्जिन के साथ में एक बार फिर जोधपुर की जनता ने आशीर्वाद देकर के भेजा। Shekhawat ji, it would be correct to say that that was the most watched election, not just in Rajasthan but all over the country, because of the interest of Mr. Gehlot's son, and in your case, actions speak louder than words. जनता का आशीर्वाद, जनता के साथ में जुड़ाव, and the love and affection the people of Jodhpur has given to me, that was the only strength of mine. My connect with the ground and the people on the ground, that sailed my ship. Absolutely. In that critical election which was being watched by the country. Yeah. निश्चित रूप से वो जो है लोगों के साथ जुड़ाव नहीं सबसे ज्यादा। And I think your humility and your work also speaks for itself. So that was a foregone. Let's move to your ministries. You are part of such crucial space, because today when we talk about the challenges of India's independence in the years to come, climate change, water conservation is extremely important. What would you like to highlight about the work you've done, and what do you expect from the citizens who are watching this program on Doordarshan, who may not want to be in politics but as responsible citizens would want to contribute to? Okay, we all are aware that water is the most critical thing for the life and economy as well. And having understand this, Honorable Prime Minister, when he became Prime Minister for the second time in 2019, उन्होंने पानी के सब्जेक्ट पर काम करने वाले डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और सारे वर्टिकल्स जितने डिपार्टमेंट्स थे, he integrated all of them and created a new ministry with the name of जल शक्ति। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट आज पूरी दुनिया को सामने दिखाई दे रहा है। हमारे रेनफॉल पैटर्न चेंज हो गए हैं, स्कैंटी रेनफॉल्स हो गई हैं, एरेटिक रेनफॉल हो गई है, एक ही दिन में सब जगह बरसात हो जाती है, सारे साल भर का एवरेज हो जाता है, लेकिन उसकी उपयोगिता नहीं होती। और मोस्टली आर रिवर्स जितनी भी हैं, बैरिंग अ फ्यू जो हिमालय से निकलती हैं, उनके अतिरिक्त बाकी सारी नदियाँ वो मॉनसून फेड हैं। राइट। सो हमारे पास में जो साल में 30-40 दिन में जो पानी आता है, वही पानी हमारे लिए कुल मिलाकर के साल भर का होता है। उसके आगे बढ़े तो हमारी ग्राउंड वाटर डिपेंडेबिलिटी दुनिया में हाईएस्ट है। हम दुनिया का 25% ऑफ द टोटल वर्ल्ड वाटर विड्रॉज, उसका 25% पानी हम निकालते हैं जमीन से। हमारी 85% डिपेंडेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड 65% फॉर ऑल द पर्पसेस इफ आई से, तो वो जमीन के पानी पे, उसके कारण से हमारी जमीन के स्रोत भी सूखते जा रहे हैं। तो इसलिए आने वाले समय में हमारी चुनौतियां और भी बड़ी होने वाली। पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, उसके कारण से भी हमारे पानी के वाटर रिसोर्सेज पे दबाव बढ़ रहा है। So would it be correct to say water is the next war? वो न हो, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको इंटीग्रेट किया।
और इंटीग्रेट करके हमने हॉलिस्टिकली पानी के पूरे स्पेक्ट्रम में सारे एस्पेक्ट्स पर एक साथ काम करना शुरू किया। एक तरफ जो सबसे बड़ा विषय है कि हर घर तक पीने का पानी पहुंचे। 2014 से जब प्रधानमंत्री बनने के बाद में सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए द स्कीम्स व्हाट ही हैज इनिशिएटेड, जी, मे बी इट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, उज्ज्वला हुआ, हाउसिंग फॉर ऑल हुआ, सैनिटेशन फॉर ऑल हुआ, स्वच्छ भारत मिशन हुआ जी। उसी की सीक्वेंस में जल जीवन मिशन ही अनाउंस्ड। जब जल जीवन मिशन अनाउंस किया था तो देश के केवल ओनली 16% प्लस हाउस होल्ड यूज्ड टू गेट वाटर in their houses, in their homes from the taps। और उन्होंने अनाउंस किया कि हम आने वाले 5 साल में 2024 तक देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। जब वो हर घर की बात करते हैं तो 19 करोड़ से ज्यादा रूरल हाउस होल्ड्स देश में हैं, जिसमें से केवल 3 करोड़ घर तक 3 करोड़ 23 लाख घर तक पानी पहुंचता था। 16 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने का टास्क था। 160 मिलियन इज अ बिग नंबर। दुनिया के 4-5 देश निकाल दें तो बाकी किसी देश की आबादी भी नहीं होगी। 4-5 countries put together। या नॉट इवन 4-5 देश अगर अलग कर दीजिए आप, बाकी किसी देश की आबादी भी 19 करोड़ नहीं होगी। और जब काम शुरू किया था 15 अगस्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया, उसके बाद में हमने वाटर बीइंग द स्टेट सब्जेक्ट, इट वाज सपोज्ड टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट्स ओनली। ऑपरेशन मेंटेनेंस भी सब स्टेट को करना है। और हर स्टेट की अलग अलग तरह की प्रिपेयर्डनेस भी है, अलग अलग तरह की जो है ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी हैं, अलग अलग तरह की प्रायोरिटीज भी हैं। सो वी सेट विद द स्टेक होल्डर, सारे स्टेट्स के साथ में बात किया, मिनिस्टर्स के साथ, सेक्रेटरीज के साथ, इंजीनियर्स के साथ में, इम्प्लीमेंटर्स के साथ में। देन वी फॉर्म्ड ए गाइडलाइन जिसको 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री जी ने जारी किया था, गुड गवर्नेंस डे के दिन। वहां से हमने काम शुरू किया। 25 दिसंबर से 25 मार्च तक 3 महीने हुए, तब देश में लॉकडाउन हो गया। एक बार लगा था दैट this scheme is going to be delayed and derailed and it is a big challenge, but it was all driving force of the prime minister and continuous मार्गदर्शन कि आज मैं गर्व से एक बात कह सकता हूं, जो आंकड़ा 3.23 करोड़ घर का होता था वो बढ़कर के अब 10 करोड़ 32 लाख घर तक पहुंच गया। 7 करोड़ से ज्यादा घरों में पानी पहुंचाने का काम हमने किया है। जब किसी घर में पानी पहुंचता है, वो केवल पानी पहुंचना है, नल से पहुंचना, इंफ्रास्ट्रक्चर आना नहीं होता, उसका जीवन बदल जाता है। बिकॉज पानी लाने की जिम्मेदारी माताओं बहनों की, महिलाओं की होती है। एंड द एरिया विच आई कम फ्रॉम, राइट, महिला अपने सर पर मटका रख करके या कुछ मटके रख करके जीवन पर्यंत उसके जीवन के सारे रोल बदलते जाते हैं। वो छोटी बच्ची से बड़ी बेटी हो जाती है, बड़ी बेटी से किसी घर की बहू बन जाती है, बहू से माँ बन जाती है, माँ से दादी बन जाती है, लेकिन वो पानी लाने का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। उसको इस अभिशाप से मुक्ति दिलाना, इस ड्रेजरी से मुक्ति दिलाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। और उसके अलावा भी देश के बहुत बड़े हिस्से में, क्योंकि पानी जमीन के अंदर से आता है तो उसमें वो कंटेमिनेटेड है, एंड नोइंग द फैक्ट कि ये पानी जो मैं ले जा रही हूँ अपने घर वालों को पिला रही हूँ, ये पानी जहरीला है, विषैला है, एंड इट इज गोइंग टू हार्म देम एंड इम्पैक्ट देम परमानेंटली। फिर भी पिलाने की मजबूरी है। क्या आपको लगता है लोगों में ये अवेयरनेस है? डू दे रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट दिस इंटायर मिशन ऑफ योर्स इज एंड द मिशन फॉर द कंट्री इज? 100%। कैस्केडिंग इफेक्ट के शायद बारे में शायद लोगों को नहीं होगा, लेकिन देखिए शाइना जी, जिसके घर में पीने का पानी पहुंच जाता है ना, तो वहां सुकून उस महिला के जीवन में परमानेंट चेंज आ जाता है। राइट। और इसके अलावा भी जो होल ऑफ द गवर्नमेंट की अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी की है, भारत में पीने के पानी जो हमारी लाइफ के लिए इतना क्रिटिकल है, हमारी हेल्थ के लिए इतना क्रिटिकल है, उसके जांच का कोई प्रोटोकॉल नहीं था, कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था जी। मैं अगर आपके दर्शकों से कहूं कि आप पानी आपके जीवन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आप अपने पानी को टेस्ट कराना चाहिए, उनके पास कोई तरह का कोई ऐसा उनके टेस्टिंग का सिस्टम नहीं है, शायद खोजने पे भी नहीं मिलेगा। राइट। और इसी के चलते लोग अपने घर में वाटर प्यूरिफिकेशन के इम्प्लीमेंट्स लगाने के लिए, चाहे वो कोई आरओ फिल्टर्स होंगे या जीरो बैक्टीरिया फिल्टर होंगे, इस तरह के इम्प्लीमेंट्स लगाने को मजबूर होते थे।
और उससे जो आउटपुट होता है उसको जांचने का भी उनके पास में कोई व्यवस्था नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन दिया, हमने इसी तरह से देश के हर जिले में, हर ब्लॉक तक NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज बने और वो एक ही जगह से जो है उसकी सारी डेटाबेस इकट्ठा हो, इस तरह से रिपोजिटरी बने, उसके ऊपर काम किया। हमने 2000 लेबोरेटरीज देश भर में इस तरह की बनाई। दिस इज अक्रॉस द कंट्री? अक्रॉस द कंट्री। अनबिलीवेबल। लेकिन मैं ये जानता हूं कि देश में गांव में रहने वाला व्यक्ति शहर में आकर के या कस्बे में आकर के अपने पीने के पानी को टेस्ट नहीं कराएगा। हमने अपने ही देश के स्टार्टअप्स को लगा करके हैंडहेल्ड टेस्टिंग डिवाइसेस डेवलप किया। देश में लगभग 2.5 लाख पंचायतें हैं। हमने अब तक 10 लाख 1 मिलियन महिलाओं को ट्रेन किया है। उनको हैंडहेल्ड डिवाइसेस उनके हाथ में दिया है, जिसमें वो पानी का कुछ ड्रॉप जो है ड्रॉपर से उसमें डालती हैं, उसके उस पे ऑटोमेटिकली टेस्ट होता है। 12 पैरामीटर्स पर उसकी रिपोर्ट आ जाती है, जिसको वो स्मार्ट कैमरा से अगर क्लिक करे तो वो ऑटोमेटिकली जो है ऐप के माध्यम से उस रिपोजिटरी में चला जाता है। अनबिलीवेबल। वहां तक भी यात्रा खत्म नहीं हुई। मुझे लगता था कि तकनीकी के युग में रियल टाइम हमारे पास में इस तरह के सेंसर्स बेस्ड डिवाइसेस, IoT डिवाइसेस होने चाहिए, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस, कि जिससे हम रियल टाइम मॉनिटर भी कर सकें। सो वी ऑर्गेनाइज्ड हैकाथॉन। हमने देश के स्टार्टअप्स को जो है इनवाइट किया कि हमें इस तरह का एक सेंसर बेस्ड डिवाइस जिसमें क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर किया जा सके, ऐसा डेवलप करके दें। हंड्रेड्स ऑफ स्टार्टअप्स उन्होंने जो है अपनी तरफ से इंटेंट एक्सप्रेस किया। हमने उनमें से कुछ को आइडेंटिफाई किया, फिर 20 ने उसमें अपने प्रोटोटाइप बनाए। फाइनली वी हैव फिगर्ड आउट 2। नाइस। और हमने 10 जगह पर इनिशियली उनको प्रैक्टिकली ग्राउंड पे अक्रॉस द कंट्री अलग अलग जगह पर उनको इम्प्लीमेंट किया। बाद में फाइनली एक को सेलेक्ट किया। आज देश में 100 जगह पिछले 1 साल से हम पायलट करके टेस्ट कर रहे हैं। हम मेरे पास में रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती है कि उन 100 जगह पर किस क्वालिटी का पानी, कितना क्वांटिटी में पानी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो हमने क्वालिटी के सिस्टम पर पूरा देश में एक नई व्यवस्था खड़े करने में कामयाबी प्राप्त की। Would you attribute the success and the vision plan of this entire movement to the Honorable Prime Minister, because he has obviously taken everything 3 steps ahead? I want to ask you, is it technocrats, bureaucrats, leadership, a political will? What would you term it as, or just good ministers? देखिए, कुछ भी इस तरह के बड़ी चुनौती की सफलता के 4-5 बिंदु होते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ आपको एक पक्ष की बात की है। मैं जल संरक्षण की बात कर सकता हूँ, नदियों के साथ जो है निर्मल अविरल बनाने के लिए हम जो काम कर रहे हैं देश भर में उसकी बात कर सकता हूँ। मैं भूजल के ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे जो काम कर रहे हैं, हम वाटर रिसोर्सेज के अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं, माइक्रो इरिगेशन के लिए काम कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन के लिए काम कर रहे हैं। देश में 1 लाख से ज्यादा गाँव आज ODF प्लस हो गए। अल्टीमेटली जो पहली चीज सबसे मैटर करती है वो होती है पॉलिटिकल विल। एब्सोल्युटली स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल हो, या एंड अ गुड लीडर। दूसरा, पब्लिक स्पेंडिंग गारंटीड हो, सरकार उसके ऊपर पैसा खर्च करना चाहे। तीसरा चीज, हम पार्टनरशिप्स करें और पूरी दुनिया में जिन्होंने उस विषय पर काम किया उनको साथ में जोड़ें। मैं वहीं पर आ रही थी। और चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, और वो कहते हैं कि कितनी भी बड़ी चुनौती हो, अगर समाज अपने कंधों पर उठा ले तो वो उसको हम सफलता से पूरा कर सकते हैं। दैट इज पीपल्स पार्टिसिपेशन। एब्सोल्युटली। और अंतिम जो 5th P जिसकी प्रधानमंत्री जी ने बात की, वो है परसुएशन, कि हम कंटिन्यूअसली परसुएट करें, बिकॉज दीज ऑल आर द थिंग्स विच आर कनेक्टेड विद आवर बिहेवियर। So we have to not only create infrastructures, but also have the change the behaviors of the people and users also. And ultimately, if we have to do conservation of water, तो हमको लोगों का behavior change करना पड़ेगा. So simultaneously, we are working on that too. Okay. I think that point you made is extremely important, because we almost coming to the end of the program. So I have few quick questions and hopefully quick answers on that. People talk about, you know, the participation of public NGOs to collaborate with government schemes. We know that Sadhguru and the Isha Foundation had Rally for Rivers. Then they talked about soil conservation, organizations such as that. Then there are smaller movements of NGOs that a lot of us participate in, where we go into tree plantation, we explain to children the importance of oxygen, etc. These are baby steps all over.
Lots of people are of the opinion that the government cannot do it all and there should be a partnership. Do you think these partnerships really help the larger movement, or do you think the government can do it on its own? Always. Without the partnerships and people's participation, it cannot happen. लोगों को भी साथ जोड़ना पड़ेगा, पार्टनरशिप्स भी करनी पड़ेंगी, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं. स्वच्छ भारत मिशन इज द एग्जाम्पल, जल जीवन मिशन इज द एग्जाम्पल. आप कोई भी उठा करके देख लीजिए, भारत में और दुनिया के कहीं किसी भी देश में अल्टीमेटली 4 P's जब होंगे तभी जाकर के सक्सेस मिलेगी. Right. We have seen many successful missions in India too. You talk about our home state of Maharashtra, Jal Yug Shivar, and there are many such which have been replicated. Do you think each state should be doing their own program, or it should all be in synergy with the center? In the country like India, everybody will have to work. The districts are working, the states are working, the union government is working, but there should be some synergy. I must agree this. लेकिन फिर भी, water being the state subject, all the states are doing. Some of the states, as you have mentioned about Maharashtra, Rajasthan has done a wonderful job in Mukhyamantri Jal Swavlamban Yojana. Gujarat, when Modi ji used to be Prime Minister, he did a wonderful job through Sujlam Suflam mission. Bihar has done a wonderful job. Neeru Chettu was done by the Andhra Pradesh government. So all the states are also doing, and there is a complete ecosystem which has emerged. जब प्रधानमंत्री ने बात करना शुरू किया पानी के बारे में, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, दैट जल का आंदोलन जन जन का आंदोलन बन गया है. आज देश में हजारों हजार ऐसे एनजीओज होंगे, प्राइवेट लोग होंगे, ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, इंस्टीट्यूट्स होंगे विच आर वर्किंग ऑन वाटर. किसी न किसी तरीके से वो काम कर रहे हैं. Thank you so much, Shekhawat ji, for highlighting the good work that you are doing. प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हैं, लेकिन आप जिस ढंग से समाज के सेवक हो, I think we can only wish you a long, healthy life. And from all of us at The Journey, we hope to hear more such stories in the years to come. Thank you. Thank you. So, there are many inspirational, aspirational stories. Gajendra Shekhawat ji has shown that the responsibility of the Jal mission is not just a tagline, but something that he has delivered on. Every week we have one member of parliament where he or she highlight the good work that they have done in parliament. Social work is so imperative as an important aspect of electoral politics. We all know that India is a vibrant democracy, a democracy that has so much to offer in the days to come. It is for you, the people of India, to contribute in small steps and baby steps. Next week, I look forward to seeing you on The Journey with another parliamentarian. Until then, this is me, Shaina NC, signing off.